औरतों को इंसान चाहता है कि वो चांद तक पहुंच जाए, लेकिन जाने से पहले 4 पराठे बना जाए। जब मेन को ये नहीं बताया गया कि आपको प्यार भी करना है, विमेन डोंट फील प्रोटेक्टेड इनफ, हमें कंसीव करना है, वो थॉट के साथ आपके बच्चे के जो जीन्स है ना वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। दुनिया आसपास की खुश दिख रही थी तो मुझे लग रहा था भाई मुझे भी खुशी होना होगा, मैं भी खुशी हो जाती हूँ। शादी करनी है, बच्चा करना है, शादी करनी है, बच्चा करना है। भाई बच्चे के बाद होता क्या है? किसी ने उसके बारे में बात की है? मतलब लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग थी कि चलो बच्चे आ गए हैं, अब करना क्या है? आप अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड नहीं फील कर रहे थे जब आपका वो फेज चल रहा था। हाउ डज इट इम्पैक्ट द किड्स? इफ यू आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, इफ यू आर नॉट नर्चरिंग द फैमिली, यू आर नॉट विमेन इनफ। तो इसके चक्कर में अब किसी ने फेमिनिज्म निकाला। फेमिनिज्म का मतलब अब ये निकाल दिया जाता है कि भाई औरतों को आदमियों की जरूरत नहीं है। Can you tell us few signs where a woman can aptly describe that she is in postpartum depression? अब हमारी मम्मियाँ कितनी प्राउडली बताती हैं कि मैं तो घर में पोछा लगा रही थी, पोछा लगाते लगाते उसके बाद यू वर बॉर्न। जो प्रीनेटल योगा है उसमें देयर आर टेक्निक्स जिसमें हम बेबी के साथ कनेक्शन बिल्डअप करवाते हैं। So it's very deep. I don't know, like I should not go this deep. I don't know how much You should actually. everyone will You should able to actually, understand. because this is something to be talked about. No, we are creating generations in lump sum and with no clue. This is something to be talked about, you know. नमस्ते व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अगर आप इस चैनल में आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो ये इस चैनल पे हम बात करते हैं स्पिरिचुअल सीकर्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज के बारे में, और हम बात करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर्स से टू गेट डीप इनसाइट्स फॉर ऑल ऑफ अस हु आर इन स्पिरिचुअल जर्नीज. On that note, today we have Ishu Gupta on our show. She is a yoga practitioner and a teacher who is helping lots of women who are in their prenatal journey or postnatal journey through yoga, and she's helping them recover from postpartum depression or even prevent postpartum depression. She's also a world record holder for holding a leg split for 11 minutes and 11 seconds. And above all of this, she's a mother nurturing two twin kids. A very warm welcome, Ishuji. I'm so thrilled to have you on our show, and it's incredible to see you. I have heard your journey. It's incredibly inspiring, and I'm so curious to get started into this conversation. A very warm welcome. Thank you so much. Thank you so much, Yarshika, for having me today. And I'm equally excited to being part of the show. I remember I heard your show, I think about a month ago, and it was so thrilled. I was so thrilled hearing your conversation with Stuti, and so I'm really excited to be part of the show today. Thank you so much for having me today. Pleasure is all mine. Before we get started, a shout out to Stuti. She is an incredible person, and thank you for sending so many gifts my way. Thank you so much, Stuti. So wherever I talk, like whenever I do any podcast or something or any talk or something like that, so Stuti is the medium. Stuti is my channel. So I always say that you're my channel, and she's literally, she's being the channel, that bridge in every conversation I'm having with someone. So yes, grateful. Yeah. Her energy is very, uplifting. Once you have that connection with her, it's like everything starts to move in your life. That's what it's been my experience. Yes, definitely. Before we dive deep into the conversation, let's just take 2 minutes, meditate, set an intention why we are doing this podcast, and surrender it to the divine. And I'll be sharing my intention with the viewers, and I'll invite you as well to share it with us, and we can go forward from there. Sure. So, Ishuji, I invite you to share your intention with us. So, whatever I do in my journey, I always pray before that कि जिसके लिए भी this is meant to be, ये उस तक पहुंच जाए. So same with this podcast, I just pray this कि जिसको भी ज़रूरत है, जिसके लिए ये बना है, please उस तक पहुंच जाए, चाहे वो एक इंसान ही क्यों ना हो. तो that is my intention with this. So pure intention, and I so connect with this, I so align with this, and my intention also falls on the same line. And I also want that we can create a clear picture of what a postpartum depression is, and how we can create a support system for everybody who is involved or part of this, as the
entire phase happens. So yeah, and along with that, I'm so curious to learn about your journey. It was so inspiring for me, and I have that intention that what I felt after hearing your journey, if somebody else can connect with that, can see the light through you, if that can happen, then job's done, and I've surrendered for the same. Thank you. So to start with, basically postpartum depression जो word है ना, मतलब to be very honest with you, when I was going through it, मुझे नहीं पता था कि ये postpartum depression है, क्योंकि आपको अगर इसके लिए ना मतलब बहुत आपको पीछे जाना पड़ेगा। ये जो जर्नी है, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट postpartum depression. दिस इज अबाउट कि हम लोगों को, एंड व्हेन आई एम सेइंग हम लोग, सो आई एम नॉट जस्ट स्पेसिफाइंग जेंडर like women or men. I am not specifying the genders over here, because this is not gender specific. Nothing is gender specific. Overall अगर आप प्रॉब्लम देखोगे ना, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को जो लाइफ के बारे में बताया जाता है, जो सिखाया जाता है ना, वो फाउंडेशन ही गलत है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी बिल्डिंग की अगर नींव ही गलत डली हुई है तो वो बिल्डिंग ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। दैट इज वाई मैरिजेस आर दैट बिल्डिंग, एंड उसका जो फाउंडेशन है ना, वो ही गलत है। ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इट इज बियॉन्ड दैट। क्योंकि हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? शादी कर लो, बच्चे कर लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है। अगेन, दिस इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। आपको बचपन से यही सिखाया जाता है, आप शादी कीजिए, आपको मतलब बड़े होके पढ़ना है, जॉब करनी है, उसके बाद शादी करनी है, उसके बाद बच्चे करने हैं। दिस इज द लाइफ जो हमें सिखाया जाता है। अब उसमें दोनों के ऊपर प्रेशर आता है, मेल के ऊपर भी, फीमेल के ऊपर भी। फीमेल को ये सिखाया जाता है कि आपको शादी करके किसी का घर चलाना है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको बच्चे करने हैं। आपकी जो अपनी लाइफ है वो एक बैक सीट पे है, कि अगर आप मैनेज कर सकते हो उस शादी और बच्चे के साथ, अगर आप जॉब मैनेज कर सकते हो तो आप कर लो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन आपकी प्रायोरिटी शादी और बच्चे हैं। ठीक है। जैसे वो वाली बात है ना कि रील भी बन रही है, जोक्स भी बन रहे हैं कि भाई आजकल औरतों को इंसान चाहता है कि वो चांद तक पहुंच जाए, लेकिन जाने से पहले 4 पराठे बना जाए। ठीक है। तो वो वाली बात है कि आप कर लो, आपको जो करना है, हम रोकेंगे नहीं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम आवर साइड। हम तो बहुत कूल है, हम बहुत मॉडर्न है, लेकिन आपको भैया घर तो आपको मैनेज करना ही करना है, बच्चे तो आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस पे बहुत ज्यादा मतलब क्या आ जाएगा कि ऐसा नहीं है, आदमी भी करते हैं, अब तो मेन भी करते हैं, इक्वल केयर टेकर हैं बच्चे के, उसमें बच्चे का भी ध्यान रखते हैं, घर भी संभालते हैं, रखते हैं, मैं नहीं मना कर रही, चेंजेस आ रहे हैं, बट वो अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो वो चेंजेस बहुत कम है। ठीक है। बदलाव हो रहा है, बट वो बदलाव अभी बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम। मैं जिस बिलीफ सिस्टम को होल्ड करती हूँ अपनी लाइफ में, आई एम ऑल्सो अ वर्किंग वुमन, बट स्टिल मैं इस बिलीफ सिस्टम को होल्ड करती हूँ कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी है, वो बहुत नरिशिंग एनर्जी है। और बाय सिस्टम ये ऐसा था कि women are staying at home and they are nourishing the family, they're nourishing the entire tribe, their family, their in-laws and the probably the villages at that time। और वो इट इज अ कनेक्टिंग एनर्जी, वो सबको कनेक्ट करके, सबको नरिश करके, सबको साथ लेके चलने की एनर्जी है। आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट, मैं अपनी अपब्रिंगिंग के टाइम से बताती हूँ। माय मदर इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन, सो she has always taught me that you have to be independent, and then there was this part that you have to take care of the family also. And somehow you're very right there, that somehow that upbringing is like that you have to do both. If you're not working, you're not smart enough. If you're not nurturing the family, you are not women enough. I would say you're not women enough. So I don't know where this got picked up, that we have to work also and nourish the family also. But somehow मुझे लगता है कि कहीं ऐसा था, मे बी हमारी ग्रैंड मदर्स के टाइम पे कहीं पे ऐसा था कि द मेन स्टॉप्ड गिविंग रिस्पेक्ट टू द women because they are at the home, and they sort of valued themselves more because they had the power of money. So somehow वो जो disbalance create हुआ था, I think that's how we have been pushing ourselves so hard since so long. So I don't know, what do you think as a society how this transformation can come? एक्चुअली आपने ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स एक साथ यू कवर्ड। सो
थोड़ा सा हमें आई थिंक थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेते हैं पहले और डिटेल में एक एक टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो इन द फर्स्ट पार्ट आई टॉक्ड अबाउट कि विमेन के ऊपर क्या हमें सिखाया गया। नाउ अगेन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज नॉट जेंडर बायस्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन नाउ, ठीक है। अब मेन के केस में क्या हुआ, मेन को भी यही बताया गया कि भाई तुम पढ़ो लिखो जॉब करो, लेकिन फिर तुम्हें शादी करनी है, बच्चे करने हैं, ठीक है। अब उनको क्या किया, उनको ये तो बता दिया कि आपको शादी करनी है, बच्चे करने हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि आपको अपनी फैमिली को प्रोवाइड कैसे करना है, प्रोटेक्ट कैसे करना है, वो नहीं सिखाया गया। और अगेन जब आई एम सेइंग कि विमेन और मेन को ये चीजें नहीं सिखाई गई, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमने किससे सीखा, हमारे पेरेंट्स से सीखा। हमारे पेरेंट्स को जो आता है उन्होंने हमें वो सिखाया, मतलब पेरेंट्स अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं अपने बच्चे का। अब आज की डेट में आपको जितना पता है उतना तो आप अपने बच्चे को बताओगे ही बताओगे, उससे ज्यादा ही बताओगे, कहीं से पढ़ के कहीं से सीख के, राइट। अगर आपको जो चीजें नहीं पता वो भी आप उनको सिखाओगे, लेकिन जो बिलीफ सिस्टम आपके अंदर ही नहीं है वो आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते हो, राइट। तो दिस इज अबाउट बिलीफ सिस्टम व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो बचपन से, वो जनरेशन से, बचपन से नहीं वो जनरेशन से यही चला आ रहा है कि आप मैन को बताते हो कि भाई यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप मर्द हो, आप रो नहीं सकते, ठीक है। आपको शादी करनी है, बच्चे करने हैं, पैसे कमा के लाना है, बस उसको तो यही बताया गया ना। लेकिन अपनी बीवी को कैसे प्यार करना है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने बच्चों को केयर, मतलब आप एक समझ रहे हो, आदमी को सिर्फ इतना बताया गया कि आपका काम है आपको पैसे कमा के लाना है और घर चलाना है, लेकिन उसमें प्यार का वो छींटा डालना भूल गए, ठीक है। औरत को क्या सिखाया, आपको शादी करनी है, बच्चे करने हैं। पहले तो यही था कि शादी करनी है, बच्चे करने हैं, जब हमारी दादी नानी के टाइम पे, तब तो जॉब का नहीं था, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट जो आपने बात बोली कि वो जॉब का कहाँ से आया औरत को कि जॉब भी करनी है। अब हुआ ये कि जब मैन को ये नहीं बताया गया कि आपको प्यार भी करना है, ठीक है, तो क्या हुआ कि विमेन डोंट फील प्रोटेक्टेड इनफ, ठीक है। फिर वो उसको जिम्मेदारियों में इतना बांध दिया, आदमी को, मैन को इतना ज्यादा जिम्मेदारियों में बांध दिया कि भाई वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन घर पे निकालनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब ये मैं वो एक्सट्रीम केसेस बता रही हूँ जिसमें मेन जो है वो विमेन को मारते हैं या अब्यूज करते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस होती है। तो इसके चक्कर में अब किसी ने फेमिनिज्म निकाला, ठीक है। अब फेमिनिज्म तो निकाला, लेकिन उसका मतलब पहुंचते 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 वो इतना ज्यादा ट्विस्ट हो गया कि अब फेमिनिज्म का मतलब कुछ और ही निकाल दिया जाता है। फेमिनिज्म का मतलब अब ये निकाल दिया जाता है कि भाई औरतों को आदमियों की जरूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। दिस इज द यूनिवर्स, ठीक है। अब जब यूनिवर्स बना है तो वो अर्धनारीश्वर ने बनाया है। अब अर्धनारीश्वर का मतलब ही यही है कि भाई हाफ मैन हाफ विमेन, यू आर बोथ फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी। तो आपको जिंदा रहने के लिए, आपको सर्वाइव करने के लिए आपको दोनों एनर्जीज चाहिए। आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी भी चाहिए, आपको मैस्कुलिन एनर्जी भी चाहिए, ठीक है। अब जिसने फेमिनिज्म निकाला स्टार्टिंग में, उसने तो ये सोच के निकाला होगा कि भाई हमें जो प्रोटेक्शन चाहिए वो हमें अपने मेन से तो मिल नहीं रही, अब वो प्रोटेक्शन हमें खुद को देनी पड़ेगी। अब खुद को देने के लिए हमें कमाना पड़ेगा, क्योंकि सारी बात स्टार्ट होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से। जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तब तक आपके हाथ में आपकी जिंदगी नहीं है, तब तक आपकी जिंदगी का स्टेयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। फेमिनिज्म का मतलब है कि भाई औरतें आदमियों के बराबर है। इसका ट्रू मीनिंग है कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए आपको। फेमिनिज्म का मतलब है यू शुड बी गेटिंग इक्वल राइट्स, ठीक है। लेकिन इक्वल राइट्स उनको मिले नहीं, तो उन्होंने इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से स्टार्ट किया कि भाई जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे तब आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो उन्होंने जॉब, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल राइट्स, क्या मिसिंग था वहां पे? इक्वल राइट्स से बेसिकली द रिस्पेक्ट एंड लव विच दे डिजर्व। क्योंकि जब एक फेमिनिन अपने घर को नर्चर कर रही है तो वो अपने हस्बैंड को प्यार दे रही है, अपने बच्चों को प्यार दे रही है, घर चला रही है, लेकिन वो जो लव एंड रिस्पेक्ट है वो उसको वापस नहीं मिल रहा। दैट वॉज मिसिंग। मैं ये नहीं कह रही कि अगर देखो अब पहले के टाइम में अगर औरतें जॉब नहीं करती थी तो वो घर चलाती थी, ठीक है। घर चला रही है, आदमी कमा के ला रहा है, तो दे आर बैलेंसिंग कि एक मैन जो है वो पैसे कमा के ला रहा है और औरत उस पैसे से घर चला रही है, ठीक है। अब ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन औरतें प्यार भी कर रही हैं, नर्चर कर रही है, वो डिसबैलेंस हो गया क्योंकि वो प्यार और रिस्पेक्ट उनको वापस नहीं मिल रहा। लेडीज अपने मेन की रिस्पेक्ट भी कर रही हैं, उनको प्यार भी दे रही हैं, लेकिन वो प्यार और लव उनको वापस नहीं मिल रहा, रिस्पेक्ट वापस नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे डिसबैलेंस स्टार्ट हुआ। दैट वाज मिसिंग पार्ट। फिर कुछ कैसे कह रहे हो कि प्रोबेबली मेन के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा था, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, दैट्स व्हाई दे वर नॉट एबल टू, और या उनको समझाया पढ़ाया सिखाया ही नहीं गया था कि ऑब्वियसली मतलब जो
जनरेशन से उन्होंने सीखा वही वो आगे कर रहे हैं। अगेन गलती किसी की भी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि मेन की गलती है विमेन की गलती है, इट्स अबाउट अगर आप देखो तो वी आर इवॉल्विंग, ठीक है, डे बाय डे, ठीक है। सो फिर क्या हुआ कि जब वहाँ डिसबैलेंस हुआ तो उन्होंने कमाना स्टार्ट किया। अब उन्होंने कमाना तो स्टार्ट कर लिया लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके पास ही है, बच्चे की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके पास ही है, ठीक है। अब उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना चाह रही हैं, तो बाहर जाके उनको वर्क भी करना है, घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में जब ये स्टार्ट हुआ था दैट टाइम मैन वाज नॉट वर्किंग एट होम, मतलब वो घर का काम में हेल्प नहीं करते थे उस टाइम पे, ठीक है। फिर धीरे धीरे चलो ग्रूमिंग के साथ जैसे किसी की फिर लव मैरिजेस भी होने लग गई एंड फिर एक हो गया म्यूचुअली बात करके कि नहीं भैया ऐसा है कि मैं अगर बाहर जाके वर्क कर रही हूँ तो घर तो तुम्हारा भी है तो तुमको भी घर में काम करना पड़ेगा। तो नाउ दिस थिंग स्टार्टेड कि मेन्स आर हेल्पिंग एट होम, वो बच्चे को भी देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस थिंग स्टार्टेड, लेकिन अगर आप उसका रेशियो देखोगे, अगर आप उसकी परसेंटेज देखोगे, स्टिल दैट परसेंटेज इज वेरी स्मॉल। आई एम नॉट सेइंग चेंज इज नॉट हैपनिंग, चेंज इज हैपनिंग, बट दैट परसेंटेज इज वेरी स्मॉल। But still, even for the men who are helping at home or the men who are helping with kids, but primary caretaker जो है ना वो आज की डेट में मदर ही है। मतलब अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल दोनों वर्किंग है, अगर हस्बैंड को किसी मीटिंग के लिए 3-4 दिन के लिए बाहर जाना है तो ही विल गो, बट एक माँ को जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। ट्रू, शी हैव टू आस्क हर हस्बैंड, और इवन चलो आस्क इज अ रॉन्ग वर्ड, शी हैव टू डिस्कस दिस विद हर हस्बैंड कि भाई मेरे को 3-4 दिन के लिए बाहर जाना है, सो विल यू बी अवेलेबल विद द किड, और शी हैव टू डिस्कस विद देयर इन लॉज और हर पेरेंट्स और वट एवर, मतलब जो भी उनका सपोर्ट सिस्टम है बेसिकली उसको डिस्कस करना पड़ेगा उन लोगों से कि भाई मुझे 3-4 दिन के लिए मीटिंग के लिए बाहर जाना है, सो विल यू बी अवेलेबल और नॉट, राइट। सो इन चीजों के चलते हुए डिप्रेशन पिक्चर में आया, क्योंकि मिशन जो है ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज नथिंग बट ओवर स्टिमुलेशन। जब हम बोलते हैं कि एक मदर बनने के बाद आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो, बहुत गुस्सा आ जाता है आपके अंदर, वो एक्चुअली गुस्सा नहीं होता, दैट इज ओवर स्टिमुलेशन। यू हैव थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स इन योर प्लेट इन एंटायर डे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज मेजरली एन आइडेंटिटी क्राइसिस because you are just suddenly disconnected from your previous life, and whatever you are into, whatever the new life you are into, you have no clue how to deal with it. Yeah, that is because you are not having that support system ना। अगर आप देखोगे तो डिप्रेशन भी उन्हीं को होता है जिनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। पहली चीज तो इसमें भी दो चीजें हैं, पहली चीज तो आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि माँ बनने के बाद होता क्या है, क्योंकि वो तो कभी सिखाया ही नहीं गया। आपको भी अगर बोला होगा आपकी मम्मी ने कि भाई शादी हो गई अब बच्चे कर लो, ठीक है, इतनी सी लाइन ही हमने हमेशा से सुनी है, मैंने तो हमेशा से यही सुनी है। मतलब कभी मैं जब हम छोटे थे किसी की शादी होती थी आस पड़ोस में तो यही होती थी नेक्स्ट लाइन की भैया बच्चा कब कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक माइंडसेट बन जाता है ना कि आपको तो शादी के बाद बच्चा ही करना है। वो तो अब होने लग गया कि कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि वी डोंट वांट टू हैव अ बेबी, ठीक है, या फिर वी विल टेक like 5 to 6 years to have baby, और या कुछ लोग डिसाइड भी नहीं करते हैं कि करना तो है पर पता नहीं कब करेंगे, ठीक है। बट राइट, ऐसे लोगों पे क्वेश्चंस भी तो आए ना स्टार्टिंग में, जब किसी ने ये स्टैंड लिया कि हमें बच्चा नहीं करना तो उनको कितना उस नजर से देखा गया कि हाउ हाउ कैन यू थिंक ऑफ इट कि तुम्हें बच्चा नहीं करना, दिस इज सो ऑब्वियस कि बच्चा तो मतलब करना ही है, मतलब ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। सो आई रिमेम्बर देयर वर लाइक फ्यू केसेस जो ये डिसाइड करते थे कि भाई हमें बच्चा नहीं करना, तो उनको कैसे हम ऐसे गिनते थे ना कि दैट दोज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, द पीपल आर नॉट पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट। इवन टुडे लाइक इवन चाहे हमें बहुत अब नॉलेज आ गई है या ठीक है हमने बहुत सारी दुनिया देख ली है या अपने केसेस भी खुद के हैं, बट स्टिल लाइक व्हेन वी सी आवर फ्रेंड्स जिनके बच्चे नहीं हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन में ना वो निकल के आ ही जाता है कि भाई व्हेन आर यू प्लानिंग टू हैव किड्स, तो स्टिल दिस थिंग इज नॉट नॉर्मल। तो हुआ क्या कि आपने ये तो बचपन से सुना, आपके माइंड में है कि भाई शादी करनी है बच्चा करना है, शादी करनी है बच्चा करना है, भाई बच्चे के बाद होता क्या है, किसी ने उसके बारे में बात की है? अब हमारी मम्मियाँ कितनी प्राउडली बताती हैं कि मैं तो घर में पोछा लगा रही थी, पोछा लगाते लगाते उसके बाद यू वर बॉर्न एंड देन तेरे को मैं घर लेके आई, एंड दिस इज द ट्रू स्टोरी। माय मदर यूज्ड टू टेल मी कि भाई जैसे मैं अष्टमी वाले दिन हुई थी, दुर्गा अष्टमी वाले दिन, नवरात्रि वाली अष्टमी, ठीक है, तो वो कढ़ाई करते हैं, पूरी छोले हलवा बनता है। मम्मा ने कहा, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्राउडली बताती है कि मैं तो सारा खाना बनाया था और घर में सारे पोछे झाड़ू पोछा करके खाना बना के और फिर भोग लगा के और फिर उसके बाद तो हो गई थी। तो शी वॉज सो प्राउड ऑफ दिस थिंग कि मतलब मैंने अपना सारा काम खुद किया
और फिर यू वर बॉर्न एंड टेको पहले तो मतलब इतनी मेड्स वेड्स कुछ होता नहीं था एंड मतलब जब घर लेके आए देन उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग, पूरा वही सब झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। तो आवर मदर यूज्ड टू बी सो प्राउड ऑफ दिस थिंग ना, एंड कहीं ना कहीं हमें ये भी सुनने को मिलता है कि तुम्हारी बॉडी में क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट। सो लेकिन उसके बाद व्हाट शी वाज फीलिंग एट दैट टाइम आई नेवर हर्ड एनी ऑफ दैट स्टोरी। Was she herself aware कि उनकी नो, दैट इज द पॉइंट, बिकॉज समझ रहे हो आप, आपको एक ही बताया जा रहा है भाई ए के बाद बी ही आता है। कभी आपने सोचा कि ए के बाद बी ही क्यों आता है, सी क्यों नहीं आता, डी क्यों नहीं आता? क्योंकि हम सोचते ही नहीं है, हमें बताइए ए बी सी डी, ठीक है, पढ़ लो बड़े हो जाओ, जॉब तो अब आती है, पढ़ लो बड़े हो जाओ, जॉब कर लो, शादी कर लो, बच्चा कर लो, ये दिस इज द ABCD ऑफ जिंदगी, ठीक है। लेकिन वो जो बच्चा, मतलब मैंने अपनी मम्मी के मुंह से, और वो तो चलो तब की बात थी, आज भी मतलब आर मदर्स हार्डली डिस्क्राइब देयर फीलिंग्स व्हाट दे आर फीलिंग एक्चुअली, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब आप फेमिनिज्म में आए, जब आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो गए, ठीक है, आपने जॉब करनी स्टार्ट कर दी, अब जब आप माँ बन रहे हैं, तो भाई एक तो भाई ये तो किसी ने बताया ही नहीं कि मतलब आपको तो मतलब सोसाइटी से ब्रेक लेना पड़ेगा, मतलब आपको अपनी जॉब से ब्रेक लेना पड़ेगा, ठीक है, और आपको मतलब इसको एक ह्यूमन बीइंग को नर्चर भी करना है, जिसके बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे नर्चर करते हैं। and you are expected that you should know everything. पहले दिन से ही वो सारी ममता फूट फूट के और जब आप माँ बनते हो तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको मदरहुड के बारे में सब चिंता मत करो, माँ बनते ही सब कुछ आ जाता है। कैसे आ जाता है भाई, मतलब कि मतलब आप सोचो, आप अपने बच्चे को जब आप स्कूल भेजते हो तो आप अपने बच्चे को ये बोलते हो ना, या मैम को बोलते हो कि मैम वी हैव सेंट देम टू स्कूल टू लर्न, ठीक है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको सिखाओ। आप अपने बच्चे को थोड़ी ना कहते हो कि कोई बात नहीं, तुझे क्लास में बैठते ही सब कुछ आ जाएगा। वो है ना कि भाई डोंट वरी, एंड मेरे को याद है मतलब कि मैंने ये पूछा था, भाई 2-2 बच्चे हो गए, मैं कैसे संभालूंगी? चिंता मत करो, माँ बनते ही सब कुछ आ जाता है। मतलब कैसे आ जाता है यार? पहली चीज तो वो कि किसी ने बताया नहीं होता। फिर जो बात आपने बोली आइडेंटिटी क्राइसिस, ऑब्वियसली यू आर नॉट वर्किंग। मेरे केस में तो लाइक मैंने जॉब पहले ही छोड़ दी थी व्हेन आई कंसीव्ड माय किड्स, बिकॉज मेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी, तो मैंने जॉब पहले ही छोड़ दी थी। उस टाइम तो आपको सब अच्छा-अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप जॉब छोड़ दी आपने, आपको है कि चलो अब यू आर हैविंग अ फ्री लाइफ एंड आप ये देख रहे हो कि ठीक है यू आर कंसीव्ड ऑलरेडी, तो आप यू आर प्रेग्नेंट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बेबी। उस टाइम पे आपको सब अच्छा लगता है। लेकिन जब बच्चे होते हैं, उसके बाद जो आइडेंटिटी क्राइसिस आता है कि आप एक माँ बन गए हो, जिसका मतलब भी आपको नहीं पता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, माँ बनना क्या होता है? अगर आप किसी से पूछो माँ बनने का मतलब, आई एम श्योर आधी से ज्यादा मदर्स को नहीं पता होगा माँ बनने का क्या मतलब होता है। माँ बनने का मतलब उनकी नजर में यही है कि भाई बच्चा हो गया, बच्चे के काम करने हैं, एंड एक वो कि भाई हमारे अंदर तो प्यार ही प्यार है अपने बच्चे के लिए। आई एम श्योर होता होगा ऐसे बहुतों के साथ, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो देन आई रियलाइज, मतलब पहले तो मुझे बहुत टाइम तक पता ही नहीं लगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस दुनिया आसपास की खुश दिख रही थी, तो मुझे लग रहा था भाई मुझे भी खुशी होना होगा, मैं भी खुशी हो जाती अंदर से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक टुडे आई एम स्माइलिंग, ओके, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम तो मुझे ऐसे लग रहा था ये हो क्या रहा है मेरे साथ, एंड आई वॉज नॉट फीलिंग इतना सा भी कनेक्शन विद माई किड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको एक बॉय और एक गर्ल हुआ है, एवरीवन अराउंड मी वाज हैप्पी। ट्विंस हो गए, एक बॉय एक गर्ल हो गया, सोसाइटली कंप्लीट, हाँ ये सोसाइटी की बात, तुम तो बड़े लकी हो, तुम्हारी तो फैमिली कंप्लीट हो गई एक ही बारी में, तुमने तो बड़ा मतलब तुम तो बहुत सही हो, तुम्हारी तो एक ही बारी में फैमिली कंप्लीट हो गई, तुम्हें तो अब दोबारा भी नहीं करना पड़ेगा, तुम तो बहुत। सो ये सब बातें चल रही थी एंड आई वाज लाइक कि हाँ यस राइट, बट I अंदर से remember my I remember my own period. There was one more aspect to it, and it was जितनी भी women around मेरे टाइम पे जिन लोगों का डिलीवरी हुआ था, some of them started working in 1 month, some in 2 months. So constantly एक जो आ रहा था सब जगह से, ओ उसने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया, when are you planning to start the child? 2 महीने, ओ और कितना टाइम, 2 महीने तो हो गए तुम्हें, अब शी इज फीडिंग ऑल्सो, तो when are you planning to start the job? So कांस्टेंट था कि भाई तुमको उसके लिए भी अवेलेबल होना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आल्सो। यस दैट इज ट्रू, बिकॉज जब आप व्हेन यू डिलीवर द बेबीज ना, तो
ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे आपकी रेगुलरली बात नहीं होती है, एंड वे डिस्टेंट फ्रेंड्स होते हैं जो आपको स्पेशल ओकेजन्स पे ही कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं. सो आई रिमेंबर जब मेरे टाइम पे ट्विन्स हुए थे, एंड लाइक जब मुझे ऐसे फ्रेंड्स तो नहीं बोलूंगी, कलीग्स जो ओल्ड मेरे कलीग्स थे, एक्स कलीग्स थे, तो व्हेन दे कॉल्ड और मैसेज, सो पहले यही होता था कि आर यू वर्किंग समवेयर, आर यू वर्किंग समवेयर. सो वो आइडेंटिटी क्राइसिस तो होता है फॉर श्योर. अच्छा, एंड सेकंड चीज व्हाट वी वर सॉर्ट टॉकिंग, ऑफ प्रेशर क्रिएट हो जाता है. हाँ बहुत हो जाता है कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर यूजलेस. ये भी बहुत आता है कि यू आर यूजलेस, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. एंड दूसरी चीज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन आता कैसे है ना, विच आई टोल्ड यू, वन थिंग इज तो ये कि जो आपको पता ही नहीं है कि बच्चे हो गए, अब उनका करना क्या है. बच्चे तो हो गए, अब अपने साथ आपको क्या फील हो रहा है, करना क्या है. प्लस अच्छा, अब यू आर नॉट वर्किंग अगर, ठीक है, या अगर यू आर वर्किंग ऑल्सो, तो आपने तो मेटर्निटी लीव ले रखी है, ठीक है. इट्स नॉट अबाउट वर्किंग और नॉट वर्किंग, बेबी हो गया, अब आप मेटर्निटी लीव पे हो, ठीक है. अब हस्बैंड को तो ऑफिस भी जाना है, ठीक है. जो आसपास वाले हैं उनको और भी काम है, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है. ज्यादा एक चलो आपकी मम्मी है, मान लो वो वर्किंग नहीं है, तो वो आपके साथ बच्चों को देख लेगी, ठीक है. या आप मेड लगा लोगे, ज्यादा से ज्यादा यही करोगे ना, आपने मेड्स लगा ली, चलो इफ यू आर कैपेबल इनफ. बट हस्बैंड को तो ऑफिस जाना है, तो वो जो डेली का भी होता है ना कि अरे यार नहीं, मैं तो बच्चों को नहलाने के लिए नहीं रुक पाऊंगा, मेरे को तो ऑफिस जाना है, देर हो रही है, ठीक है. तब इट स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रेशर ऑन यू. यू फील वेरी हेल्पलेस, क्योंकि एक तो आपको पता नहीं होता कि करना कैसे है. आपको खुद को तो आता नहीं, मुझे तो नहीं आता था अपने बच्चों को नहलाना. एंड हैट्स ऑफ टू अदर मदर्स, अगर वो अपने बच्चों को नहलाना जानती हैं, करती हैं, या जो भी है व्हाटएवर, आप अपनी कैपेबिलिटी से बेस्ट करते हो, मुझे तो इतना पता है. हर मदर, हर इंसान अपना 100% दे रहा है, ठीक है. इट जस्ट दैट कि आपका 100% और उस दूसरे इंसान का 100% इक्वल नहीं है, बस, ठीक है. तो मेरे केस में मुझे नहीं आता था कि बच्चे को कैसे नहलाते हैं या उसकी मालिश कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता था. लेकिन जब आप अपने सामने वाले से भी सुनते हो ना कि भाई मैं तो नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे तो ऑफिस जाना है, ठीक है, तब वहां पे आपको बहुत हेल्पलेस फील होता है. एंड देयर आर लाइक मल्टीपल इमोशंस इनसाइड यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और उस टाइम पे आप इतने वनरेबल होते हो ना कि आपको इतनी सी बात भी ना वो इतनी ज्यादा बड़ी लगती है, और वो आप इतने ज्यादा हर्ट हो जाते हो. एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स ऑल्सो. लाइक इन माई केस इट वॉज एन IVF प्रेगनेंसी, ठीक है. तो इट आई आई थिंक आई टुक अराउंड 650 इंजेक्शंस इन माई बॉडी टू कंसीव दोज बेबीज एंड टू मेंटेन दैट प्रेगनेंसी. ओके, तो अब क्या होता है कि ऑब्वियसली आपको अगर आर्टिफिशियल हार्मोन्स लग रहे हैं, तो इमेजिन द स्टेट ऑफ योर बॉडी. एक जब हमें हर महीने पीरियड्स के टाइम पे इतना ज्यादा मूड स्विंग्स और फ्लक्चुएशंस होते हैं, एंड यू आर टेकिंग 650 इंजेक्शंस, दैट इज लाइक आर्टिफिशियल हार्मोन्स यू आर गेटिंग इंसर्टेड इन योर बॉडी. सो इमेजिन द सिचुएशन. तो वैसे ही आप ना बिल्कुल, IVF तो ऐसा प्रोसेस है. एंड अगेन IVF के भी मल्टीपल केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि IVF इज जेनेरिक. आई कैन से दैट इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. फॉर मी इट वाज पेनफुल because I've seen some cases of IVF which is like you feel like it's a normal pregnancy, or normal delivery also happens in IVF. But mine was multiple pregnancy, it was twins, so it was very complicated. Okay. तो वैसे I was physically, emotionally, I was very drained out at that point of a time. फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या करना है. भाई बच्चे आ गए हैं, अब करना क्या है इनका. मतलब लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग थी कि चलो बच्चे आ गए हैं, अब करना क्या है इनका. जैसे होता है ना आपके घर में कोई सामान आ जाता है कि अच्छा ये सामान आ गया, अब करना क्या है इसका. तो आई वॉज हैविंग दैट टाइप ऑफ अ फीलिंग, बट किसी को मैं बता नहीं सकती थी. दैट वॉज द वर्स्ट पार्ट. देयर वॉज नोबडी टू शेयर दैट फीलिंग, क्योंकि इवन इफ आई ट्राइड मल्टीपल टाइम्स किसी को बताने का, सो वो आपके कॉमेंट्स क्या आते हैं कि भाई तुम कोई पहली लड़की थोड़ी हो जो माँ बन रही हो, दुनिया करती है ये, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, योर फीलिंग्स आर नॉट वैलिड. तो वो आपकी फीलिंग्स को इनवैलिड जो कर देते हैं ना, सो फिर आपको लगता है यार छोड़ो, मतलब शायद मैं ही ओवर थिंक कर रही हूँ. बहुत बार तो ऐसे भी लगा. फिर ये भी लगता है कि कोई नहीं समझता आपको. सो मल्टीपल थॉट्स दोज आर रनिंग. सो बेसिकली पॉइंट यही है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऐसे ही आता है इफ यू डोंट हैव सपोर्ट सिस्टम, या आपको खुद नहीं पता कि आपको करना क्या है. तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना, वो ये है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पहले तो, कि भाई. बिफोर वी गो टू द इन्फॉर्मेशन पार्ट, आई ऑल्सो वांट टू नो कि आपने एक चीज मेंशन करी थी कि जब आप इस फेज में थे यू डिडंट इवन नो कि दिस इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन. अगर आज आप पीछे देखते हो, कैन यू टेल अस फ्यू रेड फ्लैग्स, few signs where a woman can aptly describe that she is in postpartum depression? At least she can understand it for herself before she go out for a support system. सो डिप्रेशन को मैं ना एक लाइन में डिस्क्राइब करने का ट्राई करती हूँ. कोई भी तरह का जो डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन इज समथिंग व्हेन यू डोंट लाइक एनीथिंग.
आपके आसपास कोई भी चीज आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही ना अगर, सो दैट मीन्स यू आर इनटू डिप्रेशन. एंजाइटी इज व्हेन यू वरीड अबाउट एवरीथिंग. डिप्रेशन इज व्हेन यू आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग. होती है कि जिसमें आपको हर चीज की टेंशन है, ये ऐसे कर दो, वो ऐसे कर दो, ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए. और डिप्रेशन इज समथिंग जिसमें आपको कुछ भी नहीं पड़ा है, जो जहां पड़ा है पड़ा रहने दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, जिसमें आपको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई भी चीज हैप्पीनेस नहीं दे रही, दैट इज द डिप्रेशन. दिस इज द मेन, यू नो, आई कैन सम इट अप कि डिप्रेशन ये होता है. अब मेरे केस में अगर मैं, इफ आई गो बैक एंड लुक, माई किड्स वर नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस. आई वॉज नॉट हैप्पी अराउंड देम. ठीक है, आई वॉज जस्ट डूइंग देयर वर्क जो मुझे करने थे. ठीक है, बट आई वॉज नॉट हैप्पी अराउंड देम. आई वॉज नॉट हैप्पी अराउंड माई हस्बैंड. आई वॉज नॉट हैप्पी अराउंड माई अदर, यू नो, माई मदर और एनी रिलेटिव्स. मतलब लोग आते थे ना, मुझे एकदम ऐसे होता था जैसे कोई मिलने आता था ना बच्चों से, तो आई फेल्ट वेरी डिस्टर्ब्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई वाज लाइक कि क्यों आ रहे हो भाई. एंड आई रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, लेट मी टेल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और आई थिंक ये मैंने शायद कहीं पे भी नहीं बोली है, बिकॉज ये मुझे अभी ध्यान आई है. जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम, मैंने अपनी मदर इन लॉ को एक बात बोली थी कि मैं नहीं चाहती कि मुझसे या बच्चे से अभी कोई मिलने आए, बिकॉज आई वॉन्ट टू रेस्ट. बट देन सोसाइटी थिंक कि नहीं, हम कैसे मना कर सकते हैं किसी को. मतलब जो आएगा वो, अगेन उसमें इनकी उनकी कोई गलती नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि शी इज एट द फॉल्ट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इतना ज्यादा हम सोसाइटी के लिए जीते हैं ना, हम अपने लिए नहीं जीते, हम सोसाइटी के लिए जीते हैं. एंड आई मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर इन माई हेड कि मैं अपने बच्चों के साथ ये नहीं करूं. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई घर पे आता है, एक नॉर्मल होता है ना कि भाई आंटी आई हैं उनको नमस्ते करो या वॉट एवर, कुछ गाना गा के सुनाओ, या फिर जैसे एक दिन मेरा बेटा कुछ ड्राइंग बना रहा था, तो somebody said कि ये आंटी आई हैं, इनको ये अपनी ड्राइंग दिखाओ, एंड ही वाज नॉट इंटरेस्टेड. तो बट देन दे वर फोर्सिंग माय सन कि नहीं नहीं दिखाओ आंटी को, वरना आंटी को क्या लगेगा कि आपको ड्राइंग बनानी नहीं आती. देन आई स्टेप्ड इन एंड सेड कि उसका मन नहीं है तो लेट इट बी ना, व्हाई आर यू फोर्सिंग हिम. सो ये यहाँ से स्टार्ट होता है ये सब कुछ. व्हाई डज इट इवन मैटर कि आंटी को क्या लगेगा उसको ड्राइंग आती. आंटी, इट मैटर्स ना आज के टाइम में, आज के टाइम में भी इट मैटर्स टू एवरीवन. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. एंड आई नेवर फोर्स माय किड्स कि जैसे अगर सपोज कोई आंटी जा रही है, ऑब्वियसली मैंने अपने बच्चों को ये मैनर्स सिखाए हैं कि भाई इफ कोई बड़ा आ रहा है आपके घर में तो आप पैर छुओ या फिर नमस्ते करो, व्हाटएवर. ठीक है, बट अगर उनका मन नहीं है तो आई डोंट फोर्स देम. एंड आई डोंट, क्या आई कांट यार, आई कांट. यू शुड अंडरस्टैंड दैट बाउंड्री ऑल्सो. दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. ऐसा नहीं है कि आप जो बोलोगे वो करेंगे. यू नीड टू सी देम एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज योर किड्स ऑल द टाइम. सो यहाँ से ये सब स्टार्ट होता है एक्चुअली. सो ट्रू, सो ट्रू. एक चीज मैं यहाँ पे और जानना चाहूंगी. आपने एक चीज मेंशन करी है कि आप अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड नहीं फील कर रहे थे जब आपका वो फेज चल रहा था. हाउ डज इट इम्पैक्ट द किड्स इमोशनली, To be very honest with you, I don't know. To be very honest with you, I don't know, or I would say I don't remember. So if you try to look back when your kids started communicating with you, so I remember from one of your podcasts that you said that you have healed your connection with the kids, right? So is there a difference you can see when the connection was healed and when it was not healed? So was there a difference, not just for you but for the kids? So that's what I was saying you, that to be very honest, I don't remember that part. Then I was not connecting with my kids. Like how my kids were behaving or how my kids were at that point of a time, what they were doing, I actually don't remember. Because at that point of a time, most of the time, my mother was there with them. She was taking care of them. She was doing everything for them. As I said, I was just doing their course, okay, running their errands or whatever is necessary. That's it I was doing. I was not connected at all. It started healing when I started doing yoga in front of them. So I was not aware that I'm doing in front of them. I don't have any other option. Like I have to do yoga in front of them only. Like I can't leave them as they were small. So I started doing yoga in front of them. Okay. I don't know when they picked up. They started doing yoga with me. मैं जब योगा भी करती थी ना, जैसे मैं उस कमरे में हूँ तो मैं उनसे बात नहीं करती थी. मतलब आप देखोगे आई वॉज नॉट कनेक्टिंग टू देम. जैसे मैं योगा भी कर रही हूँ तो लाइक मैं उनसे ऐसे बात नहीं करती थी कि क्या कर रहे हो, वो खेल रहे हैं. जैसे मैंने
बच्चों की एक मेड रखी हुई थी, नैनी रखी हुई थी मैंने। तो वो हम्म। उनके साथ खेल रहे हैं उस रूम में ही मैं योगा कर रही हूँ। So I don't know when they started doing yoga with me. And when they started doing yoga with me, na, that is when we started communicating for the first time. What was their age then? They were one and a half or quarter to two at that point of the time. Yeah. And उससे पहले, and when I communicated with them, na, I was like, shit, I was not doing this. And the connection I felt the very first time with them, that was beautiful. That was, and you know, एक जैसे होता है ना कि मतलब आप कोई चीज नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो तब तक आपको नहीं पता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बंजी जंपिंग करके हो, ठीक है, आपने जब तक बंजी जंपिंग नहीं किया तब तक आपने उसके बारे में सुना है सिर्फ। जब आप फर्स्ट टाइम बंजी जंपिंग करके आओ या वॉट एवर इज योर एड्रेनल रश, ओके, सो जब आप वो फर्स्ट टाइम बंजी जंपिंग करके आओगे ना, यू वर लाइक शिट, मैंने आज तक क्यों नहीं किया ये, दिस फेल्ट सो गुड। So that was the feeling when I first connected with them. I was like, shit, what was I missing? So that was the feeling. जैसे मैंने ट्रैक किया पहली बार, तो एक होता है ना ट्रैक जब सबमिट कर लिया उसके बाद यू वर लाइक, ओ माय गॉड, what was I missing all this time? So that was the feeling. I think this was the only feeling जिस वजह से the whole thing of having kids is so glorified. क्योंकि वो connection जो है ना, when you feel that, when that happens with you, beyond all this lack of support system and excess of responsibilities, but just if we talk about that connection, it is very special. I don't know, you cannot feel it with any other relationship also, and it's kind of give you a sense of completeness in within. At least that's been my experience as a mother. But you know, for having kids also, you should be having proper knowledge. Either you have that, either you have that connection, ठीक है, otherwise don't have kids just for the sake of having it. This is my experience. Because lots of kids I can see, like in day to day basis, even you can see around yourself also, the kind of parents Yeah. there are these days, and the kinds of connection they are having their kids with their kids, the kind of neglect kids are facing these days, the kind of child abuse is there. So it wrenches my heart out. So basically what I'm trying to say is, either you have kids, if you have the capability to nurture them, or don't have them. This is what I learned from my life. Matlab, I am really thankful that God have given me this second chance, because when I had kids, I also don't have this knowledge. Okay. And I kind of abandoned them. Obviously, I was not feeling anything for them. I was not having any connection with them. So that is kind of a abandonment only, na? I can't say that I'm a perfect mother, but I'm really thankful that because of them, because of my kids, I feel this very strongly, that because of my kids, yoga found me. I don't find yoga. I don't found yoga. Because of my created a path for me. My kids created a path for me. This was meant to happen. They are here in this life to, help me heal, help me grow in this path. And very few people understand this, that people around you, your kids, your partner, your parents, they're all part of a journey and not somebody to just supply your needs. There is an exchange of energy everywhere. And if you can see that, if you can absorb that exchange of energy happening, if you can see that with your naked eyes, that's when the magic happens. True. So true. So yes, this is like what I learned from my life. So either have the kids with full connection, or when you understand completely what actually parenting is all about. Because I can see a lot of single parents also these days, and they are taking very good care of their kids. So have that connection, have that understanding of parenting basically. Before the connection, you should be having that understanding also, what parenting is all about. Yeah. Otherwise, don't have kids just for the sake of society. Yeah. You also said that yoga found you, and somehow with the help of yoga, you healed and your connection with your kids healed. So you are currently working with prenatal and postnatal women also, right? Yes. So what do you, in your own experience, what do you think is recommended or safe for women in terms of workout if they have no workout history?
during their pregnancy. So yoga is safe. Okay. Yoga is safe and also yoga is minimalistic, right? You don't need anything to do yoga actually. Okay. You just need a mat and yourself, your body, your mind. That's it. And yoga is safe also. And more than a workout, yoga is not a workout actually. So yoga is not just about asana. पहला तो ये we need to understand this. Yoga में 8 limbs होते हैं, ठीक है? I will not go into detail, but pranayam, meditation, kriya, dhyan, okay? Yam niyam is your basic like hygiene and everything, okay? And how you are talking to other person, whether you're lying or not. So all this coming to yoga basically. How your lifestyle is, that is yoga basically, okay? So Right. अगर आप चलो we are not going into all these details of yam niyam and everything else, but अगर आप pregnant हैं और आपकी कोई workout history नहीं है, या even अगर आप sorry I'm just stepping back, एक step मैं back ले रही हूँ पहले, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान भी कर रहे हैं, ठीक है, आजकल IVF क्यों होने लग गए इतने ज्यादा? क्योंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, Right. ठीक है, स्ट्रेस बढ़ गया है, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, दोनों मोस्टली हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, लाइफस्टाइल बहुत बैड है, आप रात को 11-11 बजे घर आ रहे हो, बाहर का खा रहे हो, ठीक है, सुबह लेट उठ रहे हो, सो बेसिकली योर साइकिल इज नॉट एज पर द नेचर, सो दैट इज अ मेजर रीजन True. कि आप नॉर्मली कंसीव नहीं कर पाते हो एंड पीपल आर गोइंग फॉर IVF, ठीक है. Right. नाउ इवन इफ यू आर ट्राइंग फॉर हैविंग बेबी, आई वुड रिकमेंड कि आपकी बॉडी को 6 months लगते हैं प्रिपेयर होने में, ठीक है, तो 6 महीने पहले से आप योगा स्टार्ट कर दीजिए, पार्टनर योगा, यू एंड हस्बैंड बोथ बेसिकली. सो दोनों And को why is that? Why specifically partner yoga? पार्टनर योगा, क्योंकि अगर मेल नहीं करेगा तो भी प्रेगनेंसी में डिले होगा, क्योंकि आप देखो ऑब्वियसली वी नो हाउ बेबीज आर क्रिएटेड, ओके, तो स्पर्म तो आपको मेल से ही चाहिए ना, तो उसका जो स्पर्म हेल्थ है वो भी तो मैटर करता है ना, सो दैट इज व्हाई ही आल्सो नीड टू चेंज अ लाइफस्टाइल. Okay. एंड बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, एज वी टॉक्ड अबाउट, एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है. अब सपोज फीमेल किए जा रही है, ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब मैं अपनी क्लासेस में बोल बोल के थक जाती हूँ कि गेट योर पार्टनर्स ऑल्सो, लाइक आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट, जो हमारी रेगुलर क्लास चल रही है उसमें ही गेट योर पार्टनर्स, बट नो, वो आना ही नहीं चाहते हैं. मेल्स आर नॉट रेडी टू कम इनटू क्लास, and although like No. I am not charging anything extra, I'm not saying that I will charge extra, I'm saying in the regular class get your partners. You're pregnant abhi, theek hai, get your partner. What I want to make them understand, the connection with the baby, the connection with the mother, but they're not ready to come to the class. So why partner yoga? मेल का sperm health भी मैटर करता है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है. दूसरी चीज, सपोज मेल का sperm health अच्छा है, ठीक है, बट देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन इन फीमेल, ठीक है, बट मेल का जो लाइफस्टाइल है दैट इज स्टिल सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और सपोज समवन इज स्मोकिंग, समवन इज ड्रिंकिंग और व्हाटएवर, ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट स्मोकिंग ड्रिंकिंग, सपोज यू हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो लेट आना, लेट उठना, बाहर का खाना, व्हाटएवर, अगर फीमेल भी सिर्फ योगा कर रही है, सो एनर्जी ट्रांसफर्स ना, बिकॉज आप योगा तो एक क्लास ले रहे हो ना, 1 घंटा आप दिन में योगा कर रहे हो, बाकी के 23 आवर्स तो यू आर स्टेइंग विद दैट मेल ना, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू करेक्ट योर लाइफस्टाइल एज अ पार्टनर. एंड देन व्हेन यू कंसीव, तो वो जो एम्ब्रियो है दैट विल टेक ऑल द एनर्जी ना फ्रॉम द मेल एंड फीमेल बोथ, राइट? Very true. या सो ये जो हमें लगते हैं ना कि जैसे सपोज आपका बच्चा आ गया है, अब बच्चे के सामने आपको गलत नहीं बोलना, या फिर यू नीड टू, जैसे हम बहुत सारे पेरेंट्स ये करते हैं ना कि बच्चे को सुला के चिप्स और सब जंक खा रहे हैं, बच्चे को हम हेल्दी खिला रहे हैं और बच्चे के सोने के बाद हम चिप्स और जंक खा रहे हैं, राइट? तो Guilty. सो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे को पता नहीं है कि आप उसको सुलाने के बाद आप जंक खा रहे हो? आपके बच्चे को पता है. तो जैसे अभी बच्चा आपका आया नहीं है और या फिर टमी में है, सपोज कंसीव कर लिया है, तो भी योर एनर्जी इज गोइंग टुवर्ड्स योर किड्स. So it's very deep. I don't know, like I should not go this deep. I don't know how much You should actually. able to You understand. should actually, because this is something to be talked about. No, we are creating generations in lump sum and with no clue. This is something to be talked about, you know. या सो आप ये अंडरस्टैंड करो द थॉट व्हेन यू पुट कि भाई मेरे को कंसीव करना है, हमें कंसीव करना है, वो थॉट के साथ आपके बच्चे के जो जीन्स है ना वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं. व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट दिस थिंग दैट वी हैव टू कंसीव, उसी के साथ साथ आपके बच्चे के जीन्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं. Right. क्योंकि अगर Energetic plane पे, right? एंड इसमें यस, एंड क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली इसमें जाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन.
ठीक है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली देखो तो एक बच्चा अपने पेरेंट चूज करता है, पेरेंट्स नहीं बच्चे को चूज करते हैं, एक बच्चा। You are opening up the secrets now. सो योर किड सोल, दैट सोल डिसाइड कि मुझे किस पेरेंट के पास जाना है, तो दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। हम जो वो बोलते हैं ना कि जो रेस में पहले आ जाता है, जो स्पर्म पहले आ जाता है, वो पहले एंटर कर जाता है, तो वो स्पर्म नहीं डिसाइड करता है। ओके, सो दैट इज डिसाइडेड बाय योर किड सोल। तो आपका किड की सोल डिसाइड करता है कि किस पेरेंट के पास जाना है, एंड जो भी आप बात कर रहे हो इवन, ठीक है, दैट सोल इज लिसनिंग एवरीथिंग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स दोनों पार्टनर का लाइफस्टाइल, ठीक है, तभी आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी में जा सकते हो। एंड कमिंग बैक टू प्री नैटल पोस्ट नैटल योगा, सो प्री नैटल योगा में, सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कंसीविंग, यू शुड स्टार्ट एटलीस्ट मिनिमम 3 to 6 months बिफोर योर कंसीविंग। जैसे आपने सोचा, सपोज आज आपने सोचा कि मेरे को कंसीव करना है, तो स्टार्ट विद योगा विद योर पार्टनर, क्रिएट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बॉडी को प्रिपेयर होने में 3 to 6 months लगते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर डॉक्टर ने भी बोल दिया ना, मतलब कितने तो ऐसे केसेस हैं कि जिसमें ट्यूब ब्लॉकेजेस है बट स्टिल नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गई है विद योगा। सो योगा कैन डू वंडर्स। योगा इज नॉट जस्ट आसनास। आपको मतलब जो प्रीनैटल योगा है उसमें देयर आर टेक्निक्स जिसमें हम बेबी के साथ कनेक्शन बिल्डअप करवाते हैं। पहले बेबी इज इन योर बेली बट वी बिल्ड अप योर कनेक्शन विद द बेबी। Beautiful. एंड अगर उस टाइम पे आपका पार्टनर इन्वॉल्व है, आई कैन टेल यू दिस विल डू वंडर्स टू योर लाइफ। To I the mean, baby's life. या एंड इवन टू योर लाइफ ना भाई। देखो, आपको नर्चर करना है अपने बेबी को, यू कांट पोर फ्रॉम एम्प्टी कप। जब तक आपका कप ही भरा हुआ नहीं होगा, आप कैसे अपने बच्चे को प्यार करोगे, So true. राइट? सो दिस इज द थिंग। एंड आई डोंट नो व्हाई, लाइक अब वही बात है ना यार। देखो, आप बाहर गए डिनर पे, आपने 5,000 रुपए लगा दिए, आपको एक ड्रेस पसंद आया, आपने 3,000 रुपए का ड्रेस ले लिया, ट्रिप पे चले गए, लाखों रुपए लगा दिए, बट आप एक योगा क्लास में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, विच कैन चेंज योर लाइफ। एंड दिस इज नॉट मोमेंट्री ऑल्सो, रेस्ट ऑल थिंग्स आर मोमेंट्री। आपने डिनर खाया, अगले दिन 40 में निकल गया। सो बट योगा क्लास, this is going to be permanent with you, yeah. You should invest in your soul basically. This is true, and this is something needs to go to like masses. I don't know what actually matters. Being human, what actually matters has been so badly subsided, and ये initiative पूरा इसीलिए है कि भाई जागो, we have to unplug from this. And one follow-up question that I have is, after the pregnancy, what is the safe time period for women to restart their own, physical well-being journey? Or you can say asanas or pranayam. In your own experience, how early they can start? देखो, मैंने तो बहुत लेट स्टार्ट किया था बिकॉज मुझे उस टाइम पे योगा की कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने तो योगा बहुत लेट स्टार्ट किया, एंड प्रोफेशनल नॉलेज मैंने उसके भी बाद में ली थी। बट वॉट एवर नॉलेज आई हैव टुडे, उसके बेसिस पे इफ़ यू आर हैविंग अ नॉर्मल डिलीवरी, तो आप विद इन 4 weeks स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन During nursing also you can start. यस, एंड इवन मैं आपको बताती हूँ, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, चाहे आपकी सी सेक्शन डिलीवरी है, देयर आर फ्यू प्रैक्टिसेस विच यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर, on day 1 basically after delivery you can start practicing, but please under the guidance, okay? अपने आप कुछ नहीं करना है, under the guidance you can start from day 1 also. There are pranayams, there are joint movements पे कोई ध्यान नहीं देता है, Right. ठीक है। joint Most of the stuck energy जो है, हाँ, तो joint movements, joints को तो आपको डेली मूव करना ही करना चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग फुल फ्लेजेड वर्कआउट सेशन और समथिंग लाइक दैट, बट जॉइंट मूवमेंट्स यू शुड प्रैक्टिस डेली, ठीक है। तो जॉइंट मूवमेंट्स हो गए, प्राणायाम हो गए, दोज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम day 1 ऑल्सो, ओके। अब अगर नॉर्मल आपकी डिलीवरी है तो आप 4 weeks में स्टार्ट कर सकते हो, सी सेक्शन डिलीवरी है तो 6 weeks या 8 weeks में स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर डॉक्टर गिव्स अ गो एट। बट एवरीथिंग डिपेंड ऑन टाइप ऑफ डिलीवरी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि आपको कट लगाए या नहीं लगाए, एंड दोस टेक्निकल डिटेल्स। सो बेसिकली डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के बाद, एंड प्लीज अपने आप कुछ भी मत स्टार्ट कीजिए, आप एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में स्टार्ट कीजिए, यू विल डेफिनेटली फील बेटर। और प्राणायाम, मेडिटेशन, मतलब ये तो मैं कहती हूँ कि हर एक इंसान को करना चाहिए। अगर आप 15 मिनट का प्राणायाम रोज करके देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
बिकॉज योर लाइफ इज एसोसिएटेड विद योर ब्रेथ ओनली. आपकी जितनी इमोशंस हैं, आपकी जितनी लाइफ है, दैट इज ऑल एसोसिएटेड विद योर ब्रेथ ओनली. अगर आपकी ब्रेथ करेक्ट है तो आपकी जिंदगी वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी. ब्यूटिफुल एंड वेरी पावरफुल मंत्र, आई मस्ट से. आई मीन, अगर ये बात पहुंच जाए ना हर एक दिल तक, ये वहां पे नॉक कर दे एक बारी, तो इस पे मैं एक एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाना चाहूंगी व्यूअर्स को. बेसिकली सो इमेजिन कीजिए, जैसे सपोज हम गुस्सा होते हैं, कोई भी गुस्सा होता है, आपने सुना होगा कि 10 तक काउंट करो. ठीक है, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा. और हो भी जाता है. क्यों हो जाता है, कभी सोचा है आपने कि 10 तक काउंट करने में ऐसा क्या हो जाता है कि हमारा गुस्सा शांत हो गया? ब्रेथ रिलैक्स हो जाती है. यस, अंडरस्टैंड करो, आपकी एक ब्रेथ का पैटर्न है. ठीक है, जब आप रिलैक्स स्टेट में हो, आपकी ब्रेथ का एक पैटर्न है. अब हमें मल्टीपल इमोशंस फील होते हैं. हम्म हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, एंग्री. हम्म ठीक है, मल्टीपल इमोशंस फील होते हैं. क्यों होते हैं ये इमोशन फील? मतलब क्या होता है ऐसा कि जैसे अभी सपोज आप हैप्पी हो, सडनली आपको गुस्सा आ गया, तो क्या चेंज हो गया आपकी बॉडी में? आपकी ब्रेथ. थॉट प्रोसेस. नो, आपकी ब्रेथ. अगर आप ध्यान दो, जैसे ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने बोला थॉट प्रोसेस. थॉट तो चेंज हुआ ही हुआ. आपके माइंड में कोई ऐसी चीज आई जिसने आपको गुस्सा दिला दिया, लेकिन आप गुस्सा कर रहे हैं, वो कैसे चेंज हुआ? वो आपकी ब्रेथ से चेंज हुआ. आपकी ब्रेथ का पैटर्न चेंज हो गया. और जब हम 10 तक काउंट करते हैं ना, तो हमारी ब्रेथ का पैटर्न वापस रिलैक्स में आ जाता है, इसीलिए हम शांत हो जाते हैं. और आप कभी ये भी ट्राई करके देखना, कभी होता है ना हमें गुस्सा आ नहीं रहा होता, बस हम दिखा रहे होते हैं, तो उसके इसमें क्या होता है? ब्रेथ नॉर्मल होती है. ब्रेथ नॉर्मल होती है और सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ होता है. सो इवन इफ यू आर हैविंग मल्टीपल थॉट्स, यू कैन रिमेन काम बाय कामिंग योर ब्रेथ, एंड दैट इज व्हाई प्राणायाम इज इम्पोर्टेंट. Amazing. One more thing that I have is, as a men, as a immediate family, what are the things that we can imbibe to support the women around, to support them in their pregnancy, delivery, the nurturing phase? What is this? What is that we can build around ourselves? One thing I can surely tell is communicating with the mother to hear out what she has inside. What else do you think we can add to the list? मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं हो सकता अगेन. मतलब वी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन एंड अगेन. वही मेन की और विमेन की गलती नहीं है किसी की भी. अभी क्या है ना, देखो आपके जो हाथ में है वो आप कर सकते हो. मेरे 2 बच्चे हैं, एक बॉय एक गर्ल है. अब मैं उनको कैसे नर्चर कर रही हूँ ना, वो फ्यूचर बनेंगे आगे का. कल को मुझे नहीं पता उनकी शादी होती है नहीं होती है, उनका कोई पार्टनर होगा नहीं होगा, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं अपने हाथ में आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ कि मुझे अपने बच्चों को ऐसे नर्चर करना है कि वो हर एक इंडिविजुअल को लव एंड रिस्पेक्ट, 2 चीजें जरूर दें, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज की जो मदर्स हैं या आज के जो फादर्स हैं, बेसिकली उनको ये चाहिए. देखिए क्या रहता है ना कि किसी को बदलना इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगर मैं आज की डेट में आपको बोलूंगी आप बदल जाओ, आप ये करने लग जाओ, इट्स वेरी डिफिकल्ट. इम्पॉसिबल ही है बिल्कुल. ठीक है, तो लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप अपने बच्चे को वो शिक्षा दे सकते हो या उनको सिखा सकते हो, लेकिन सिखाना भी आपको बाय एग्जाम्पल ही पड़ेगा. आप उनको सिर्फ बोल के नहीं सिखा सकते हो कि आपने ये बोल दिया. वो पावर भी नहीं है. जैसे आप वो पावर नहीं है. सेम जैसे आपने बोला कि उनको चिप्स नहीं खाओ, जंक नहीं खाओ, तो आपको खुद भी छोड़ना पड़ेगा. राइट. ठीक है, सो मेरे हाथ में जो है, मैं यही है कि जैसे अब आज की डेट में अगर मेरा बेटा अगर बर्तन मांज रहा है तो मेरी बेटी भी बर्तन मांज रही है. अगर मेरी बेटी झाड़ू लगा रही है तो मेरा बेटा भी झाड़ू लगा रहा है घर में. अगर वो डस्टिंग कर रही है तो वो भी डस्टिंग कर रहा है. देयर आर नो जेंडर बायस्ड रोल इन आवर हाउस. ब्यूटीफुल. आई थिंक ये अपब्रिंगिंग के अगर ये रूल्स सोसाइटी में स्प्रेड हो जाए तो उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है दैट कैन इफेक्ट मल्टीपल जनरेशंस कमिंग थ्रू. आप लव सिखाओगे ना, मतलब हैव द लव इन योर हार्ट एंड टीच दैट लव टू योर किड्स. शो देम दैट लव. बेसिकली डोंट टीच देम, शो देम दैट लव. टू हैव दैट लव फॉर ईच एंड एवरी क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड, देन ओनली दिस वर्ल्ड कैन सर्वाइव. क्योंकि ना देखो, अल्टीमेटली जहां से हमने बात स्टार्ट की थी, मेन बने हैं प्रोटेक्टर, मेन आर प्रोटेक्टर, विमेन आर नर्चरर. लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुका है क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर लड़की काम कर रही है, हर लड़की जॉब कर रही है, हर लड़की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही है. हम लोग नहीं बने हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, हम लोग नहीं बने हैं डंबल्स उठाने के लिए, बट हमें करना पड़ रहा है मजबूरी में. इतना ओवरवर्कड है हम, और ओवरवर्कड को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है.
कि अरे वाह यार, ये तो मतलब भाई, अब आज की डेट में आई एम डूइंग 2 जॉब्स, आई एम नर्चरिंग माय किड्स, आई एम टेकिंग केयर ऑफ हाउस, आई एम वर्किंग आउट आल्सो। सो मेरे को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है बाहर कि यार ये तो मतलब ऑल इन वन है। मेरे को नहीं होना ग्लोरीफाई, मुझे उसमें बहुत बैड फील होता है एक्चुअली। आई नीड माई प्रोटेक्टर यार, मेरे को चाहिए मेरा प्रोटेक्टर, मेरे को मेरा मैस्कुलिन चाहिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये सर्वाइव करना ऐसे। तो ये ग्लोरिफिकेशन जब हम बंद करेंगे ना, और एक्चुअली में तो वो ही होना चाहिए, पहले जैसे होता था भाई आदमी कमा के ला रहा है और जो औरतें हैं वो घर चला रही हैं। और बी इट अदर वे अराउंड, बी इट इवन अदर वे अराउंड, आदमी घर संभाल रहे हैं, औरत कमा के ला रही है, वट एवर दैट इक्वेशन इज फॉर यू, वट एवर दैट बैलेंस इज फॉर योर स्पेसिफिक कपल और योर स्पेसिफिक फैमिली, बट समवेयर डाउन द लाइन ये बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं हम सोसाइटी में दैट देयर इज अ डिसबैलेंस ऑफ एनर्जीज। हाँ, और वो होगा ना, आप भाई आप कितनी जगह पे अपनी एनर्जी स्पेंड कर लोगे। आप उधर से मल्टीटास्किंग कर रहे हो, किचन के लैपटॉप पे रख के, किचन के स्लैब पे आप लैपटॉप रखा हुआ है, खाना भी बना रहे हो, कॉल भी ले रहे हो, उधर से बच्चा आवाज लगा रहा है, उधर से हस्बैंड आवाज लगा रहा है। टू डू दैट कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमारे पास, लेकिन हम चेंज भी हम ही कर सकते हैं। इफ वी विल वेट फॉर समबडी कि कोई आएगा और उसको चेंज करेगा, नहीं होने वाला। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये समझाना पड़ेगा अपने लड़कों को भी, लड़कियों को भी, कि भाई लड़कों तुम्हें प्रोटेक्टर बनना है और लड़कियां तुम्हें नर्चर करना है, तभी चल पाएगी। तभी पहले चलती भी थी ना, अब आप देखो डिवोर्सेस कितने ज्यादा होने लग गए हैं आज की डेट में। दिस इज द रीजन, क्योंकि एनर्जी का डिसबैलेंस है। फेमिनिन मैस्कुलिन बनी घूम रही है, मैस्कुलिन फेमिनिन बना घूम रहा है, तो वो इतना डिसबैलेंस होगा तो फिर कहाँ से थॉट्स मैच होंगे ना। ट्रू ट्रू ट्रू। आई थिंक जो एक पते की बात, जो एक गांठ मार लेने वाली बात ये है कि लव, दैट इज द की टू एवरीथिंग। अगर हम रोल डिस्क्रिमिनेशन से भी चले जाएं कि तुम्हारा ये रोल है या उसका ये रोल है, अगर हम ड्यूटीज राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी परे खड़े हो जाएं, अगर वो लव भी है ना, तो ये बैलेंस लाया जा सकता है। लव फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग, वो कुची को रोमांटिक प्यार लव की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। The love to, celebrate the other human, celebrate the people around you, the life around you. If that can come back in the thought process also, if it can come back through this podcast, I think job is done. जो लास्ट बात एक मैं और बोलूंगी कि जो वो लव की आपने बात बोली ना, सेम जैसे अभी क्या हुआ कि औरतें खाना बनाती थी, ठीक है, आदमी बाहर से कमा के ला रहा है, औरत ने इतने प्यार से प्लेट रखी एंड इट्स लाइक ये क्या खाना बनाया है तुमने, या चलो कुछ बोला नहीं, सपोज खा लिया, बट देन देर इज नो लव टुवर्ड्स दैट फूड, नो लव टुवर्ड्स दैट विमेन हु, यू नो, Actually, मतलब आप इंग्रेडिएंट्स को खाने में तब्दील कर रहे हो, दिस इज अ आर्ट। yeah. और हमेशा कभी भी आप खाना खाते हो, आपको खाना खाने से पहले 3 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, खाना उगाने वाले का, खाना कमाने वाले का और खाना बनाने वाले का। Definitely. ठीक है, तो वो ही जो हमने पहले बात की सारी, कि वो जो लव एंड रिस्पेक्ट मिसिंग था ना, जब औरत को लगा कि भाई मैंने तो पूरा दिन लग के और मतलब इस इंग्रेडिएंट्स को खाने में तब्दील किया, इतना अच्छा खाना बनाया, उसके लिए मुझे कोई लव एंड रिस्पेक्ट ही नहीं मिला, तो इससे अच्छा तो मैं बाहर जाके पैसा ही कमा लेती हूँ। आई थिंक ये जो रील्स आजकल इतना चलती है ना कि लड़की शादी के टाइम पे बोल देगी लड़के को, मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी, आई विल नॉट एंटर इनटू द किचन, वो इसलिए भी है बिकॉज वी हैव सीन आवर ओन मदर, आवर ग्रैंडमदर्स बीइंग डिसरिस्पेक्टेड और नॉट केयर्ड इनफ व्हेन दे वर सर्विंग द फूड। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। फिर आपको ये लगेगा ना क्या मिलेगा खाना बना के, इससे अच्छा तो पैसे ही कमा लेती हूँ, कि मैं दूसरों की रोटियां बनाने के लिए थोड़ी ना पैदा हुई हूँ। I think Ishu ji, I have very wonderful conversation. It's very inspiring. It's very eye-opening and it's very touching. And it shows a very clear picture of where our society is heading in totality, in collective. And the key to open all the abundance, the prosperity, the success, the love, everything that we are looking for in our life, the key for that is love for another human being. एंड अगर वो की हम लोग अपने पास खोज लें तो वी कैन फाइंड अ वे आउट। आई हैव अंडरस्टूड दैट थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन। आई थिंक दिस ट्रिकल्स डाउन टू समबडी एल्स ऑल्सो सिटिंग आउट देयर लिसनिंग टू आवर कॉन्वर्सेशन। So thank you so much. I'm really, really grateful for this conversation, for your energy as a person, as a human, as a soul. And thank you for giving your energy to this podcast, to our channel. I am so grateful. I cannot express it in words. So thank you so much. And thank you, viewers. I hope
जो मैसेज हम लोग कन्वे करना चाह रहे थे थ्रू दिस, हम वो कन्वे कर पाए हैं. Probably we would have touched your heart. If so, if you have connected through this, do leave us a comment in the comment section below. And lots of love. Thank you so much. Thank you so much. And I can't tell you how grateful I am, because whatever topics we have covered, we have actually covered, like, whatever is happening in the society. And I'm really grateful that it have come out this way. It couldn't have been better. And just one thing I want to say to the viewers is, whatever you're looking for, whatever your question is, love is the answer. So go and find love in your life, and rest all will follow. Thank you so much. Amazing, amazing. It cannot have been said better than this. It cannot have been put much better way than this. So thank you everyone for today's conversation. Bye. See you. Bye.